हम हैं अधूरे तेरी शरण में, हमें प्यार दे माँ, हमें प्यार दे माँ, प्यार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, इशार दे माँ, इशार दे माँ, दे माँ। थैंक यू। વધુ સમય ન લેતા લક્ષ્ય ગીત માટે હું આપ સૌને પોતાના સ્થાન પર ઊભા થવા વિનંતી કરીશ. કાર્યક્રમને આગળ વધારતા મહેમાનશ્રીઓના પરિચય આપવા હું શાહ એનએચ કોમર્સ કોલેજના
કાર્યક્રમને આગળ વધારતા મહેમાનશ્રીઓના પરિચય આપવા હું શાહ એનએચ કોમર્સ કોલેજના એનએસએસ પ્રોગ્રામ ઓફિસર આરજી પવાર સરને આમંત્રિત કરું છું. આરજી પવાર સર. એનએચ કોમર્સ કોલેજ વલસાડ એનએસએસ યુનિટ દ્વારા આયોજિત નેશનલ લેવલ વેબિનારના આયોજક અને માર્ગદર્શક એવા કોલેજના આચાર્ય શ્રી ડોક્ટર ગિરીશકુમાર રાણા સાહેબ, આજના વેબિનારના કીનોટ સ્પીકર ડોક્ટર કમલકુમાર કર સાહેબ, વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટીના એનએસએસ કોઓર્ડિનેટર ડોક્ટર ભરતસિંહ ઠાકોર સાહેબ, મારા સાથી અધ્યાપક મિત્રો, એનએસએસ વોલેન્ટિયર્સ તથા વેબિનારમાં ભાગ લેનાર તમામ મિત્રોને હું સંસ્થા વતી આવકારું છું. રાષ્ટ્રીય સેવા યોજના એનએસએસ ને ભારત સરકારના માનવ સંસાધન વિકાસ મંત્રાલય દ્વારા વર્ષ 1969 એટલે કે ગાંધીજીના જન્મ શતાબ્દી વર્ષથી શરૂઆત કરવામાં આવી. આ યોજના ઉચ્ચ શિક્ષણના વિદ્યાર્થીઓને સમાજ સાથે જોડવા માટે પ્રોત્સાહન આપે છે. તેઓ વર્ષ દરમિયાન આરોગ્ય અંગે જાગૃતિ, પર્યાવરણ, પ્રૌઢ શિક્ષણ, સામાજિક સમરસતા, ગ્રામ સફાઈ તથા લોક જાગૃતિના કાર્યક્રમો દ્વારા સમાજ સાથે જોડાઈને કાર્યો કરે છે. રાષ્ટ્રીય સેવા સ્વરૂપ એવા પ્રકાર એમાં સ્વયંભૂ પ્રવૃત્તિમાં યોગદાન મોટા પાયા પર આ વિશાળ હેતુઓને ધ્યાનમાં રાખી દર વર્ષે બ્લડ રાષ્ટ્રીય પર્વ અને આરોગ્યલક્ષી કાર્યક્રમો દ્વારા વાર્ષિક શિબિર યોજી શિક્ષણ અને આરોગ્ય અંગેના કાર્યક્રમો, નાટ્ય પ્રવૃત્તિ દ્વારા, શ્રમ યોગદાન અંગેની પ્રવૃત્તિઓ તથા સામાજિક જાગૃતિ અંગેની પ્રવૃત્તિઓ આદરે છે. આ પ્રવૃત્તિઓ દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓ ઉપરાંત પ્રોગ્રામ ઓફિસર શ્રીઓ પણ સહભાગી થાય છે. અમારી કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ તથા પ્રોગ્રામ ઓફિસર શ્રીઓ પણ જુદી જુદી રાષ્ટ્રીય લેવલના કેમ્પમાં, રિપબ્લિક ડે પરેડમાં હિસ્સેદારી કરી છે. કોલેજની આવી પ્રવૃત્તિઓની નોંધ રાષ્ટ્રીય લેવલે, રાજ્ય કક્ષાએ તથા યુનિવર્સિટી કક્ષાએ મોટા પાયા પર લેવાય છે. અમારી કોલેજના હાલના આચાર્ય શ્રી ડોક્ટર ગિરીશકુમાર રાણા સાહેબ એનએસએસ ની પ્રવૃત્તિઓ માટે ખૂબ જ વિશાળ વિઝન ધરાવે છે.
ભવિષ્યમાં પણ અમારી પરંપરા જીવંત બની રહેશે તેવી શુભ ભાવના સાથે આ કોલેજની NSS ને લગતી વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ નિરંતર ચાલતી રહેશે। આ કોલેજની જે NSS ની પ્રવૃત્તિ ચાલે છે એનો ટૂંકમાં મેં ચિતાર આપ્યો છે। હવે હું આજના મુખ્ય બે કીનોટ સ્પીકર છે તો એ કીનોટ સ્પીકર સાહેબનું ટૂંકમાં પરિચય આપું છું। ડોક્ટર કમલ કુમાર કર સાહેબ, તેઓ MSc PhD ની ડિગ્રી ધરાવે છે। તેઓ શ્રી હાલમાં જુલાઈ 2019 થી NSS હેડક્વાર્ટર્સ ન્યૂ દિલ્હી ખાતે આસિસ્ટન્ટ પ્રોગ્રામ સલાહકાર તરીકે અને ટેકનિકલ હેડ ફોર NSS ના મીડિયા ડિવિઝન ઓફ મિનિસ્ટ્રી ઓફ યુથ અફેર્સ ફોર્સમાં કાર્યરત છે। આ પહેલા તેઓ ભોપાલ ખાતે, કોલકાતા ખાતે, અમદાવાદ ખાતે અને દિલ્હી ખાતે રિજિયોનલ ડાયરેક્ટર તરીકે સેવા આપી ચૂક્યા છે। તેઓ 2002 માં એજ્યુકેશન અને યુથ પ્રોગ્રામ સ્ટડી માટે જાપાન ગયા હતા। ત્યાર પછી 2016 માં SCO યુથ સમિટ કઝાકસ્તાન ખાતે ભાગ લીધો હતો। ત્યાર પછી 2017 માં બ્રિક્સ યુથ સમિટમાં પણ તેઓ શ્રીએ ભાગ લીધો હતો। ત્યાર પછી 2018 માં યુથ ડેલિગેશન પ્રોગ્રામમાં ચીન ખાતે પણ તેઓ શ્રીએ ભાગ લીધો હતો। તેઓ શ્રીને 2015 થી એટલે કે છેલ્લા 5 વર્ષથી વોટર અવેરનેસ કેમ્પેઇન અંગેનો એવોર્ડથી સન્માનિત દર વર્ષે કરવામાં આવે છે। બીજા કીનોટ સ્પીકર છે ડોક્ટર ભરતસિંહ ઠાકોર સાહેબ। તેઓ MA PhD ની ડિગ્રી ધરાવે છે। તેઓ શ્રી વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટીના NSS ના કોઓર્ડિનેટર તરીકે સેવા બજાવે છે તથા વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટી ખાતે ગુજરાતી ડિપાર્ટમેન્ટમાં ગુજરાતીના આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર તરીકે સેવા બજાવે છે। થેન્ક યુ। થેન્ક યુ સર। હવે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત માન્ય મહેમાનશ્રીઓનું શાબ્દિક સ્વાગત માટે હું શાહ NH કોમર્સ કોલેજના આચાર્ય શ્રી ગિરીશ રાણા સરને विनंती करूं छू। गिरीश राणा सर। राष्ट्रीय वेबिनार राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से श्री नितवन केळवनी मंडल संचालित शाह NH कॉमर्स कॉलेज की तरफ से आयोजित किया गया है। हमारे सभी परिवार की ओर से, कॉलेज के विद्यार्थियों की ओर से, हमारे सभी जो पार्टिसिपेंट जुड़े हैं उन सभी का मैं सहृदय स्वागत करता हूं। आज का दिन हमारे देश के लिए बड़ा भाग्यशाली दिन है, आप सभी जानते हैं। उसी तरह शिक्षक दिन है, टीचर्स डे है और उसी दिन हमारी कॉलेज के NSS छात्रों और प्रोग्राम ऑफिसरों ने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है। मैं उसके कोऑर्डिनेटर हमारे कलीग्स प्रोफेसर पवार सर, प्रोफेसर राणा सर और NSS के सभी टीम लीडर्स और छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन दे रहा हूं कि इसी वेबिनार से हम लोग आज सभी पूरे राष्ट्र के अंदर जुड़ने का प्रयास किया है। दोस्तों, राष्ट्रीय सेवा योजना का जो संचालन किया गया है, शुरुआत की गई है, उसका मकसद समाज के अंदर युवा अपने आप में सामाजिक गतिविधियों से कैसे जुड़े और समाज में जाकर सही तौर पर श्रम या तो समाज के अलग अलग अंगों से उसका महत्व भी अभ्यास करें। उसी उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत इस देश में की गई। 2 अक्टूबर से यह शुरुआत की गई थी। समझना चाहिए, माननीय महात्मा गांधी जी, मैं कई बार बता रहा हूँ, न खड़ग बिना ढाल,
जिसने दी आजादी, इसका अर्थ समझना बहुत जरूरी है। और इसीलिए उस दिन से इस देश के युवाओं को श्रम का महत्व, सादगी से जीना, अपने आप में समाज के विविध अंगों से कैसे जुड़ा जाए, सभी चीजों का अभ्यास विद्यार्थियों ने अपने कॉलेज और महाविद्यालय में जो हमारा काल है उसने करना है। और इसीलिए राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत की गई। मुझे बड़ा गर्व है कि हमारी कॉलेज के एनएसएस के यूनिट द्वारा हर साल एक नया प्रोग्राम हम लोग करते हैं। देहातों में जाकर विद्यार्थी अपने आप में देहात के जो जीवन है उसका अभ्यास भी कर रहे हैं। और इसीलिए समाज के अंदर सभी वर्गों का अभ्यास करना भी उन्होंने सीखा है। एक एकेडमिक लाइफ, एक ग्रेजुएशन के बिना भी समाज का एक नया आयाम हमारे विद्यार्थी हर बार कर रहे हैं। और इसीलिए आज इस राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा हमने जो वेबिनार का आयोजन किया है, उस वेबिनार का टाइटल हमने दिया था रोल ऑफ एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर्स एंड द वॉलंटियर्स इन द डिजास्टर एंड कोविड-19 मैनेजमेंट। दोस्तों, पूरे देश में नहीं, पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर आज एक रिसेशन का पीरियड चल रहा है, एक मंदी का माहौल चल रहा है, परिस्थितियां गंभीर बन रही है। और इसीलिए वो चाइना हो, अमेरिका हो, जापान हो, या फिर हमारे देश की हम बात करते हैं, तो आर्थिक परिस्थिति का जो आकलन किया गया है, जीडीपी नीचे आ रहा है। और हर रोज हम पेपर में पढ़ रहे हैं कि परिस्थिति डिजास्टर के तौर पर आई थी, एक विराट स्वरूप लेकर पेंडेमिक में बदल गई है। हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारा शासन एफर्ट्स कर रहा है कि हम कैसे निकले, इस डिजास्टर को हम कैसे इजी बनाए। आने वाले कल के लिए जो हमें लॉस हो रहा है, इकोनॉमिक लॉस जो हमें दिखाई दे रहा है, 2 दिन पहले जीडीपी हमने देखा है वो माइनस में चला गया है। आर्थिक परिस्थिति की विडंबनाएं हम लोग समाज में देख रहे हैं। और इसीलिए इसका अभ्यास करना जरूरी है कि डिजास्टर कैसे कम किया जाए और आने वाले कल के लिए कोविड-19 की जो इफेक्ट्स है उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए। व्यवस्थापन बहुत जरूरी है दोस्तों। इसीलिए हमने आज हमारे दिल्ली के जो हमारे माननीय गेस्ट जिसको बुलाया हुआ है, डॉक्टर कमल कुमार कर, बड़े विद्वान आदमी है, बड़ा अनुभव है, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। और उनको हमने विनती की थी, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और उनको अभिनंदन भी दे रहा हूँ और थैंक्स भी बोल रहा हूँ कि आप हमारे कार्यक्रम में अपना समय निकाल कर आप आए हुए हैं। सर, आपका वेलकम है। दूसरे हमारे जो स्पीकर हैं और मेहमान हैं वो डॉक्टर भरत सिंह ठाकुर, जो दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी के गुजराती विभाग के व्याख्याता है, एनएसएस के कोऑर्डिनेटर पूरे यूनिवर्सिटी के हैं, काफी अनुभव है। और इसीलिए हमने उनको भी आज आमंत्रित किया हुआ है। मैं दोनों गेस्ट का बहुत तहे दिल से मैं स्वागत कर रहा हूं और मैं उनको स्वागत करके अपने आप में बड़ा उपकृत हुआ हूं। मैं चाहता हूं सर कि आप हमारे प्रोग्राम ऑफिसर और जो विद्यार्थीगण जुड़े हुए हैं उन सभी को आज के दिन एक नया संदेश दे, ताकि हमारे विद्यार्थी भी समाज में जाकर एक बड़ा काम और एक बड़ा कर्तृत्व का एहसास करें, ताकि आने वाले कल के जीवन में उनका एक अच्छा समाजी जीवन निकले। ऐसी अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय गुजरात, जय भारत। धन्यवाद। Thank you so much, sir.
હવે આપણે જેમને સાંભળવા ઉત્સુક છીએ એવા આપણા માનનીય મહેમાન શ્રી કમલકર સરને ઉદ્બોધન આપવા વિનંતી. કમલકર સર. धन्यवाद. मेरा आवाज आ रहा है? यस सर. ओके, थैंक यू. आज की ये जो वेबिनार, राष्ट्रीय वेबिनार आयोजन किया जा रहा है, इसके आयोजक आचार्य श्री गिरीश भाई, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर एनएसएस साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी भरत भाई, सारे प्रोग्राम ऑफिसर मित्रों, पूरे भारत से जितने भी जुड़े हुए हैं सारे एनएसएस पदाधिकारी मित्रों और विद्यार्थी मित्रों, एनएसएस होनहार विद्यार्थी मित्रों, पहले सबसे पहले आप सबको मैं स्वागत करता हूं और अभिनंदन देता हूं राष्ट्रीय शिक्षक दिन की. इसके साथ साथ में एक चीज, जो जितने सारे विद्यार्थी मित्र जुड़े हुए हैं और प्रोग्राम ऑफिसर्स मित्र जुड़े हुए हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने टीचर्स के साथ सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है, आपका म्यूट हुआ है, देखिए जरा सर जी, आवाज नहीं आ रही है सर. क्योंकि एनएसएस मुख्यालय की तरफ से हमने सबको रिक्वेस्ट भी किया हुआ है. अब आते हैं कि जो आज की संदर्भ में बात करने के लिए डिजास्टर में और या कोविड-19 के कंट्रोल में, इसके मैनेजमेंट में एनएसएस की प्रोग्राम ऑफिसर और एनएसएस की वॉलंटियर्स की क्या भूमिका होगी. जैसे कि आप सबको पता है मित्रों की एनएसएस की शुरुआत हुई है समाज के लिए कुछ काम करना और व्यक्तित्व विकास करना सामाजिक सेवा के माध्यम से. इसके मूल उद्देश्य वही था. 1969 में जब ये स्टार्ट हुआ था तो यही मकसद था कि व्यक्तित्व के विकास करना, ये हमारा मकसद था. तो उसी को लेकर पूरा हो गया है इसका मतलब ये सितंबर को 50 साल पूरा हो गया. तो आप देखिए कि कितने कार्यक्रम शुरू हुए हैं, खत्म हुए हैं, उसकी शुरुआत होके खत्म हो, उसको हम अतीत में डाल देते हैं. लेकिन एनएसएस एक ऐसा कार्यक्रम है 50 साल पहले जिस ध्येय को लेकर शुरू हुआ था, आज भी उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है. ये सबसे अहम बात है जो एनएसएस की बात हम करते हैं. तो विद्यार्थी का व्यक्तित्व विकास करने के लिए समाज सेवा एक माध्यम है. उसी समाज सेवा को जोर में रखते हुए हमको काम करना है. अगर हम हिंदी में इसके मोटो है, में उसको कहते हैं नॉट मी बट यू, और जो हिंदी में इसकी बात हम करते हैं स्वयं से पहले आप. स्वयं से पहले आप मतलब हम अपने को बिल्कुल ऊपर रख, अपने को बिल्कुल पीछे रखते हैं. दूसरा जो हमारे सामने है, जो समाज के लास्ट माइल में, जैसे गांधी जी पर हम बात करते हैं कि अगर जो भी सुविधाएं, जो भी सुख सुविधाएं, जो भी प्रोग्राम्स है, जब तक लास्ट माइल के जो आदमी, जो कहते हैं कि गुजराती में क्या, एकदम लास्ट पॉइंट में जो बैठा है, छेवड़ेना मानस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मेरा गुजराती इतना सही नहीं है. तो जो लास्ट में बैठा है जो आदमी है, वहां तक पहुंचना है. तो एनएसएस इस को ध्यान में रखते हुए काम करता है. तो ये जो मेन चीज है, तो उसमें समाज सेवा एक टूल है, एक माध्यम है व्यक्तित्व को विकास करने के लिए. तो उसी टूल को कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे, क्या क्या स्किल्स होगा हमारा, और ये जो राष्ट्रीय आपदा है, डिजास्टर है, प्राकृतिक आपदा है, मानव सृजित आपदा है, या राष्ट्रीय आपदा जैसे कोविड-19 है, इट इज बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल पेंडेमिक, ये बिल्कुल राष्ट्रीय आपदा घोषित की जा चुकी है. तो इसके मैनेजमेंट में हमारा रोल क्या होगा. मित्रों, यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एनएसएस की मैंडेट है, जो हमारा जो काम करने के लिए मैंडेट दे रखा है, उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट, उसमें एक मेजर पार्ट डिजास्टर मैनेजमेंट है. तो डिजास्टर मैनेजमेंट की जहां तक बात आती है, तो कोविड भी एक तरह की डिजास्टर है. तो दोनों चीज को जोड़ के मैं थोड़ी समय आप लोगों से बात करूंगा. तो डिजास्टर की 3 फेज होती है. एक तो डिजास्टर या जो आपदा होती है वो एक फेज है, जो मेजर फेज है. उसके पहला होता है प्री और उसके बाद होता है पोस्ट. कुछ जगह पे जो प्री डिजास्टर और पोस्ट डिजास्टर, इसमें ज्यादा काम होता है, क्योंकि डिजास्टर के टाइम पे हम कुछ कर नहीं सकते हैं, या हमारे हाथ में, हमारे बस में कुछ ज्यादा नहीं रहता है.
अभी जैसे कोविड-19 है, ये हमारे बस का नहीं है। आपने देखा होगा कि फरवरी के महीने से हम इसके ऊपर एनएसएस ने, जहां तक एनएसएस की बात आती है, हम जनवरी से इसके लिए अवेयरनेस करना शुरू कर दिए थे। तब लोगों ने हमको कहा कि नहीं, ये तो बाहर की देश की बीमारी बाहर हो रहा है, हमारे यहाँ पे क्या होगा। लेकिन हमें मालूम था कि कहीं ना कहीं हम अछूते नहीं है कि दूसरे के घर में आग लगाए तो हमारे घर अछूता रह जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये वैश्विक आपदा है। पूरे दुनिया के जितने सारे जो डेवलप्ड कंट्री है वो भी इससे जूझ रहे हैं। इससे वैक्सीन की सारे बात हो रही है कि सितंबर आधा महीने तक आ जाएगा, अक्टूबर के एंड तक आ जाएगा, तो एक स्पेकुलेशन है। तो ये जो आपदा चल रही है ये हमारे बस का नहीं है। तो आपदा के समय में क्या करना है ये हमारे बस का है। तो डिजास्टर के समय में क्या करना है इसकी ट्रेनिंग, इसकी प्लानिंग प्री डिजास्टर फेज में होता है। और डिजास्टर हो जाने के बाद जो काम है, मूलतः रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन, साइको सोशल सपोर्ट, मोरल काउंसलिंग, ये सारा चीजें हैं जो डिजास्टर के बाद होती है, जो अभी कोविड-19 के चलते हुए मेजर चीज है। अब यहाँ हम आते हैं कि कोविड-19 में जो डिजास्टर है या कोविड-19 के अंदर हम क्या कर सकते हैं। तो ये जो क्या कर सकते हैं की बात आती है, मैं इसको ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़ी सी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इसमें क्या कर सकते हैं या हमारे वॉलंटियर मित्र क्या कर रहे हैं। सबसे तो पहला है कि अपना सुरक्षा, चाहे कोई भी डिजास्टर हो, कोई भी आपदा हो, हमको सबसे पहले अपना सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो फिर दूसरों को क्या सुरक्षा देंगे, दूसरे के साथ हम क्या बात करेंगे। तो अपनी सुरक्षा कैसे होगी, जैसे राष्ट्रीय आपदा जो संस्थान है, प्रबंधन संस्थान है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और हमारा गृह विभाग है, भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं कि इस आपदा में हमको क्या करना है। सबसे पहला, जब तक ज्यादा जरूरत न पड़े तब बाहर नहीं निकलना, मतलब घर में अपने आप को सीमित करके रखना। उसके वजह से क्या होगा कि हम खुद को और दूसरों को संक्रमित होने से बचाएंगे। इसके लिए तो कोई पैसे की जरूरत नहीं, इसके लिए कोई साधन की भी जरूरत नहीं है। हम अपने आप को घर के अंदर सुरक्षित करके रखेंगे और बाहर जब तक जरूरत ना पड़े तब तक नहीं लेके लेंगे। दिस इज नंबर 2, अगर जरूरत पड़ा और हमको निकलना पड़ा बाहर, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे। उस स्थिति में दो चीजें हैं, एक तो भीड़ भाड़ वाले जगह से दूर रहेंगे, जहां पे ज्यादा क्राउड है, वी शुड अवॉइड द क्राउडेड स्पेस। कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखना है। तो कोशिश करेंगे कि आमने सामने के जितने लोग हैं उनमें से 2 गज की दूरी, कम से कम 1 मीटर मिनिमम तो दूरी मान के रखेंगे कि जहां पे वहां नहीं जाएंगे, दूरी बनाए रखेंगे। तीसरा चीज है मुंह को कवर करके रखना, हाथ, मुंह, नाक, ये जो है इसको कवर करके रखेंगे। तो कवर करने के लिए क्या चाहिए, मास्क चाहिए, फेस मास्क। तो यहाँ पर बात आती है कि फेस मास्क हम कहाँ से, कितने पैसे कवर करेंगे, कितने पैसे खर्च करेंगे। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि होममेड मास्क, जो घर से कपड़े से बनाया हुआ 3 लेयर मास्क है, जो घर पे आराम से बन सकती है पुराने कपड़े से काट के, तो उसको हम लगा के, मास्क लगा के जाएंगे। और जैसे कहीं बाहर गए और बाहर से आए तो 1 घंटे के अंदर हम 1 घंटे के व्यवधान पे हाथ को साबुन के पानी से धोएंगे। बात आती है अल्कोहल बेस्ड हैंड रब जो है, उसको सैनिटाइजर को हाथ में लगाने की बात आती है। तो जो वैज्ञानिक लोग हैं इन्होंने ज्यादा शोध करके पता किया है कि सबसे जो असरदार चीज है वो है साबुन के पानी। तो साबुन के पानी से ये जो वायरस है इसकी आउटर कवरिंग खत्म हो जाती है और वायरस की डेथ हो जाता है। तो अगर साबुन नहीं है तो फिर हम अल्कोहल की तरफ जाएं, लेकिन सबसे जो बेस्ट चीज है साबुन से हाथ धोएं, और हाथ और अपने जो बाहर की जितना भी एक्सपोजर होता है उसको धोएं। अगर बाहर से आते हैं तो कपड़े को हम उसको डिजिनफेक्ट कर दें, कपड़े को साबुन के पानी में धो लें। तो ये बेसिक चीज है जो हमारे लिए हथियार है, और इसको एक टर्म दिया गया है न्यू नॉर्मल, क्योंकि कोरोना या कोविड-19 होने के बाद नॉर्मलसी खत्म हो गई। जो इससे पहले हम जो नॉर्मल घूम रहे थे, नॉर्मल बिंदास चल रहे थे, वो सारा कुछ खत्म हो गया। अभी न्यू नॉर्मल है, हमको कोविड और कोरोना के साथ जीना है। कोरोना को हम अवॉइड नहीं कर सकते, कोविड-19 ऐसे ही रहेगा।
तो हमें उसी के साथ जीना है, तो कैसे जिएंगे? तो ये 3 चीजें हैं। एक तो दूरी, सैनिटाइज करना या डिसइंफेक्ट करना अपने हाथों को, और मास्क पहनना। तो ये 3 चीजें हम करेंगे। लेकिन मित्रों, इसमें आपका रोल क्या है? अगर सरकार ने बोल दिया, ये तो बोल दिया, लेकिन आपका रोल क्या है? आप देखिए कि आप अगर बाहर निकलते हैं तो मार्क करेंगे कि लोग इसको सावधानी से, इसको मतलब क्या कहते हैं कि सीरियसली इसको नहीं ले रहे हैं। लोग ऐसे ही बैठे हैं, बिना मास्क के झुंड बना के बैठे रहते हैं, दूरी मेंटेन नहीं करते हैं। हाथ धोने की बात तो दूरी है, तो अदर एक एक जगह पे दूसरे जगह पे थूकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये थूक के माध्यम से फैलता है, लेकिन जब थूकते हैं तो दूसरों को इन्फेक्शन करने की चांस आ जाती है। तो ये जो मानसिकता है लोगों का, उसको बदलाने की है। तो ये बदलाव के लिए आपको योगदान देना पड़ेगा, जो कि राष्ट्रीय निर्माण में आपका भूमिका है। जहां तक एनएसएस के विद्यार्थी की बात आती है, हम कहते हैं कि राष्ट्र निर्माण में एनएसएस के विद्यार्थी काम करते हैं। तो राष्ट्र निर्माण में आपकी ये भूमिका होगी कि आप अपने घर में जितने लोग हैं उनको इसके बारे में बताइए। आपके इधर से घर के लेफ्ट साइड 5 घर, राइट साइड 5 घर, अगर 10 घर के लोगों को आपने बताया, तो इससे बढ़िया, इससे बढ़कर राष्ट्र सेवा कोई नहीं। क्यों? आप कम से कम 10 परिवार के लोगों को आपने संक्रमित होने से बचाने की प्रयास कर लिया। और इसके बाद एक और चीज आता है कि मानिए कि दुर्भाग्यवश से कोई संक्रमित हो गया, तो उसके लिए मन में कोई भेदभाव नहीं रखना है, एक द्वेष नहीं रखना है, एक घृणा नहीं रखना है कि ये कोविड पॉजिटिव हो गया, ये कोविड ग्रस्त हो गया, तो ये आदमी अछूते, इसको हम छुएंगे नहीं। तो ये जो एक भेदभाव की मानसिकता है, ये आज की तारीख में ये समाज में बहुत बड़ी बुरी तरह की ये फैला हुआ है। मित्रों, आपने शायद अपने आसपास कोई कोविड ग्रस्त हुए हैं, उनको देखा है, नहीं देखा है, ये मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की संचालन कर रहे हैं हम गतिविधि, पूरे भारत के अलग अलग जगह पे कोऑर्डिनेटर्स, प्रोग्राम ऑफिसर, प्रिंसिपल्स, इन सबसे बातचीत होती रहती है। तो जो लोग एक बार कोविड ग्रस्त हो जाते हैं, जब वो वापस हॉस्पिटल से आते हैं, यहाँ तक ऐसा भी हुआ है कि उनको परिवार में ग्रहण करने के लिए परिवार के लोग तैयार नहीं हुए। तो एक भ्रांति फैला हुआ है कि ये कोविड ग्रस्त हो गया तो ये तो फिर गया, ये वापस नहीं आएगा, इसका नॉर्मल खत्म हो गई जिंदगी का। तो ये जो पॉइंट है, इसको हमको ज्यादा जोर देना है, समाज के अंदर ये बात बताना है कि ये कोविड जैसे दूसरे बीमारी की तरह है, ये एक वायरस इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन हो गया, हमने ट्रीटमेंट ली और क्योर हो गया, और जैसे नॉर्मल है पूरा नॉर्मल होकर घर में वापस आ गए। लेकिन एक ऐसा धारणा बन गया समाज के अंदर कि कई जगह से ये देखने को आया हुआ है कि मानिए कोई किराएदार है, वो कोविड ग्रस्त हो गया, तो उसको उसी सोसाइटी में रहने नहीं दे रहे हैं। अगर कोई कोविड ग्रस्त है, गांव में लोग उसको वापस आता है, तो गांव में लोग उसको बात नहीं करते, उससे साथ नहीं बैठते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि जो उच्च शिक्षित है, जो हाईली क्वालिफाइड है, उनके बीच में भी ये धारणाएं हैं। तो उसको दूर करने के लिए हमको काम करना पड़ेगा। हमारे जो विद्यार्थी मित्र हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग ये चीज लोगों के बीच में बताएं कि ये कोई दूसरी बीमारी जैसा, ये आम बीमारी है, कोई ज्यादा बड़ी घातक नहीं है। और अगर आप देखे होंगे कि इसके रिकवरी रेट बढ़ता जा रहा है, इसका रिकवरी जो कैजुअली रेट है, जो शुरुआत के दिनों में जिस तरह से इसकी डेथ रेट होता था, अब उतना नहीं है। अब भय इसका धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो सरकार ने अनलॉक, लॉकडाउन 1, 2, 3 होने के बाद अब अनलॉक 4 भी पहुंच गया है। अभी सारा गतिविधि न्यू नॉर्मल को मेंटेन करते हुए हम गतिविधियां चल रहा है, क्योंकि कितने दिन बंद होकर रहेगा, हम सारे चीज को बंद नहीं कर सकते। तो इसलिए न्यू नॉर्मल की बात आती है कि हमको कोविड के साथ चलना है, कोविड को साथ में लेके चलना है। तो कोविड को साथ में लेके चलेंगे तो इसकी रोकथाम के लिए जो उपाय है उसी को हमको करना है। और सबसे बड़ी चीजें हैं इसमें, हम कुछ चीजों को हमको अपनाना है। एक तो कुछ जानकारियां आती है, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूनिवर्सिटीज हैं, इसको मैं यूनिवर्सिटी इसीलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे ज्ञान इसमें से बांटते हैं जिसका कोई सत्यता नहीं है। किसी ने कुछ व्हाट्सएप में भेज दिया, हम उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, फेसबुक में कुछ आ गया, उस पोस्ट को आगे फॉरवर्ड कर दिए। तो उसमें क्या होता है, कई मिसकंसेप्शन इसमें फैल जाता है। तो उस मिसकंसेप्शन को, जो भ्रांतियां हैं, उसको हम आगे नहीं करना है। सत्यता जानने के बाद ही इसको आगे बढ़ाना है, ऑथेंटिकेट करना है, जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन उसको आगे बढ़ाना है, जो जानकारियां हम देते हैं उसको एलिब्रेट करना है, उसको एम्पलीफाई करना है। हम 2 लोगों को बताएं, 4 लोगों को बताएं, 10 लोगों को बताएं। आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे बता दूं
कि पूरे भारत में हमारे 1 करोड़ फेस मास्क हमारे मित्रों ने बांट चुके हैं। एनएसएस के विद्यार्थी पूरे भारत में 1 करोड़ फेस मास्क बांट चुके हैं। करीबन 60 लाख लोगों को आरोग्य सेतु एप्लीकेशन जो सरकार ने बनाया है उसको डाउनलोड हमने किया हुआ है। करीबन 60 लाख लोगों ने हमारे विद्यार्थियों के माध्यम से डाउनलोड किया। से स्टैटिस्टिकल जानकारी देंगे तो माननीय प्रधानमंत्री भी अपने भाषण में एनएसएस के विद्यार्थियों का काफी तारीफ कर चुके हैं जो कोविड पैंडेमिक में काम कर रहे हैं। तो ये चीजें कि प्री पोस्ट और ड्यूरिंग डिजास्टर की जो बात है, छोटी छोटी बिंदुओं हैं, इसको अगर हम मान के चलेंगे तो मेरे को नहीं लगता है कि हम ग्रसित होंगे या आपदा में हम अपने आप को घेरे पाएंगे। इसमें और एक चीजें हैं जो आपदा की, जो कोविड पैंडेमिक, इसमें फ्रंट लाइन वर्कर हैं, हेल्थ वर्कर हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक वर्कर्स हैं, पुलिस फोर्स है, देन विलेज की आंगनबाड़ी आशा वर्कर हैं, विलेज लेवल हेल्थ वर्कर हैं, हमारे एनएसएस के विद्यार्थी, एनसीसी कैडेट्स हैं जो काम कर रहे हैं सामने। उनको आप जितने हो सके उनकी संवर्धना कीजिए, उनकी बहुमान करिए, ताकि इनको ये लगेगा नहीं समाज भी हमारे। आप देखिए कि कई डॉक्टर्स की मौत हुई है कोरोना की फाइट करते हुए, तो ये लोग फ्रंटलाइन वर्कर है, ये सही मायने में सैनिक है जो अगले पंक्ति में खड़े होकर हमारे समाज को बचा रहे हैं। तो उनको आप सम्मान करिए। जो सफाई कर्मी है, सफाई कर्मचारी हैं, जो सैनिटेशन वर्कर हैं, उनका भी आप सम्मान करिए। तो ये सारा चीजें हैं जो एनएसएस के विद्यार्थी से हम उम्मीद करते हैं। साथ साथ आपको ताज्जुब होगा कि मनुष्य के साथ साथ जो कोरोना के समय, लॉकडाउन के समय में हमारे विद्यार्थी जानवर सेवा किए, पशुओं के लिए चारा देना, उनके खान पान देना, पक्षियों के लिए दाना पानी, ये भी हमारे विद्यार्थी मित्रों ने काफी अच्छे ढंग से किया हुआ है। तो एनएसएस जो इससे पहले कभी भी जब भी राष्ट्रीय आपदा आया हुआ है तो हमारे विद्यार्थी मित्र बिना झिझक, चाहे भूकंप हो, चाहे वो सुनामी हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे आगजनी हो, तो उसमें बिना झिझक अपने जान को परवाह किए हुए इसमें काम किए हुए हैं। कई जगह पे अभी आपके नाम अगर मैं गिनना शुरू करूं तो कम से कम सैकड़ों नाम आएगी। हमारे वॉलेंटियर, हमारे प्रोग्राम ऑफिसर, हमारे कोऑर्डिनेटर्स, आपको बताऊं कोरोना ग्रसित हुए हैं, कोविड पॉजिटिव हुए हैं, 14 दिन की उन्होंने हॉस्पिटल में दाखिला लिए हैं। दाखिला लेने के बाद जब ठीक हो गए फिर आके कोरोना में काम करने के लिए जुट गए हैं। आपके गुजरात की है, महाराष्ट्र की है, कलकत्ता की है, दिल्ली के हैं, उड़ीसा के हैं, कर्नाटक के हैं, केरला के हैं। कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे बच्चे, हमारे प्रोग्राम ऑफिसर, हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, हमारे जिला नोडल ऑफिसर कोरोना पॉजिटिव हुए, उसके बाद ठीक हो गए। अब उनकी लगाव देखिए कि वो आके काम करने में लगे। तो यही एनएसएस की स्पिरिट है, यही एनएसएस की लगाव है, यही एनएसएस ने सिखाता है कि राष्ट्र निर्माण जब करने जाते हैं स्वयं से पहले आप। मैं स्वयं की परवाह नहीं करता, मैं आपकी परवाह करता हूं। जो समाज में हमारे सामने बैठा हुआ है, जो लास्ट माइल में बैठा हुआ है, उसके पास जब तक सेवा नहीं पहुंचेगी, जब तक वो सुखी नहीं है, तब तक मैं सुखी नहीं हूं। इसीलिए मैं कहता हूं स्वयं से पहले आप, जो हमारे लक्ष्य गीत की लाइन है, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। एनएसएस की 50वीं सालगिरह है, गोल्डन जुबली में ये जो समाज को काम करने के लिए हमको मौका मिला है, उसके लिए मैं सारे एनएसएस के परिवार को, एनएसएस हेडक्वार्टर होने के नाते आप सबको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जब भी राष्ट्र पुकारेगा एनएसएस के विद्यार्थी सब कुछ छोड़ के सामने आके समाज सेवा करने के लिए राष्ट्र के साथ हर विपदा में, हर आपदा में, हर खुशी में कंधे से कंधा मिला के खड़ा होगा। यही जो डेडिकेशन है, यही एनएसएस की पहचान है। पूरे भारतवर्ष में एनएसएस ने अपना नाम रोशन किया हुआ है। तो आपदा में जितना हम कर पाएंगे, यही हमारा पॉइंट है कि डिजास्टर को हम मैनेजमेंट में यही हमारा भूमिका होगा। मैं यही कामना करता हूं कि आने वाले दिनों में आपका योगदान, आपके कंट्रीब्यूशन, आपके सहकार मिलता रहे। पुनः शिक्षक दिवस की आपको ढेर ढेर सारे बधाई हो। आने वाले दिनों में राष्ट्र निर्माण में हम अपने आप को न्योछावर करेंगे, यही कामना करता हूं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, कोविड से अपने आप को बचाते रहें, और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द ये कोरोना खत्म हो जाएगा। हम ये वर्चुअल मोड, वेबिनार मोड छोड़ के फिजिकली एक दूसरे के आमने सामने बैठ के बात करेंगे और एक स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध राष्ट्र बनाने में अपना योगदान देंगे, यही कामना करता हूं। जय हिंद।
થેન્ક યુ કમલ સર. હવે કાર્યક્રમને આગળ વધારતા વીર નર્મદ સાઉથ ગુજરાત યુનિવર્સિટીના એનએસએસ કોઓર્ડિનેટર ભરત સરને ઉદ્બોધન આપવા વિનંતી. ભરત સર. यस सर, वेलकम. भरत भाई आओ. नमस्कार. हाँ जी, नमस्कार. हिंदी या પછી ગુજરાતી? आप जो चाहे वो कर सकते हैं सर. प्रेफर योर लैंग्वेज, नो इश्यू. आज के इस राष्ट्रीय वेबिनार में माननीय कीनोट स्पीकर कमलकर सर, शाह एनएच कॉमर्स कॉलेज के प्रिंसिपल राणा सर और विभिन्न फैकल्टीज, स्टूडेंट्स और अदर पार्टिसिपेंट. आज का जो विषय है वो विषय कुल मिलाकर प्रोग्राम ऑफिसर और स्वयंसेवक की भूमिका कोविड-19 जो पैंडेमिक जो है उसमें क्या थी और कैसे रहेगी. ये जो एक परिस्थिति बनी कमलकर सर. सर તમારો અનમ્યુટ કરજો સર, પ્લીઝ સર. તમારો વોઇસ નથી આવતો સર, તમારો અનમ્યુટ કરવું પડશે. हेलो हाँ जी, હવે આવે. हाँ जी. तो ये जो कोविड-19 की जो स्थिति बनी उस स्थिति में प्रोग्राम ऑफिसर और स्वयंसेवकों की जो भूमिका है वो भूमिका समाज के अन्य वर्ग से कई अलग तरह से उसकी भूमिका रही है और ये भूमिका उन्होंने बहुत बखूबी से निभाई हुई है. प्रोग्राम ऑफिसरों ने इस परिस्थिति में जैसे लॉकडाउन हुआ और उन लोगों ने अपने बच्चों को टेलीफोनिक सोशल मीडिया से संपर्कित करके समाज को जिस तरह से जरूरत थी उस तरह से सहयोग किया है. कमलकर सर जी ने जो बताया है कि आरोग्य सेतु ऐप लोगों को फूड वितरण जो करना है, जो पशु प्राणी है उनके लिए जो घास वगैरह की जो आवश्यकता है उसके लिए भी व्यवस्था हमारे स्वयंसेवक और प्रोग्राम ऑफिसर ने की है. तो राष्ट्र निर्माण में स्वयंसेवक और प्रोग्राम ऑफिसर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहती है. आज के इस विशेष दिन में टीचर्स डे है. आप सबको टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं हैं. और कमलकर सर जी ने जो बताया है कि सेल्फी विद टीचर ये बहुत अच्छा मुहिम है और हम लोग आज से और आज के दिन ये सेल्फी निकालकर अपने आपके जो सोशल मीडिया जो है उस पर से अपना टैग करे और एनएसएस के साथ वो जुड़े. ये हमारा आज का एक नया मुहिम रहेगा. 2-3 बात बताना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारी बातें माननीय कमलकर सर जी ने बताई है कि राष्ट्रीय सेवा योजना की जो भूमिका रहती है वो अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग तरह के रहती है, पर कुल मिलाकर समाज के अलग जो वर्ग है जो राष्ट्रीय सेवा से जुड़ा नहीं है उन लोगों को साथ जुड़ने का है और जुड़कर समाज को सुदृढ़ बनाना है. समाज में जो कमियां है वो कमियों को ढूंढकर वो कमियों को अच्छी तरह से उसको सुलझाना है. ये भी अपने स्वयंसेवक की और प्रोग्राम ऑफिसर की भूमिका में आता है. एक टीचर क्या हो, शिक्षक कभी साधारण नहीं है, ये बात चाणक्य ने कहा था. ये जो सूत्र जो है इस सूत्र की सार्थकता भी यही हमारी जो इस ऐसी परिस्थिति जो प्राकृतिक आपदा है, नैसर्गिक आपदा है, ऐसे समय में एक शिक्षक अपनी जो परिस्थिति के अनुरूप भूमिका करता है और उस हिसाब से समाज के साथ जुड़कर वो कार्य करता है. भारत के प्राचीन समय की जो संस्कृति है उस संस्कृति के साथ की शिक्षा व्यवस्था है. ये व्यवस्था में आजादी के पश्चात जो बदलाव आया था वो बदलाव के एक नया पहलू
अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नया एक पूरा शिक्षा का परिवर्तन हुआ है, ये हमारे लिए गौरव की बात है कि इतने सालों के बाद 1835 की जो पूरी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को इतने सालों के बाद यानी कि आजादी के पश्चात 72 साल हुए, उसमें अभी की जो वर्तमान जो शासन व्यवस्था है उसने भारत के अनुकूल, भारत की प्रजा के अनुकूल, भारत की भौगोलिक के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था की एक योजना की और राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नया आया है, ये भी हमारे कार्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग जब काम करते हैं फील्ड में, तो फील्ड में काम करते करते समय हमें बहुत कुछ सीखने के भी मिलता है और कई चीजें ऐसी भी आती है जो चीजों में हम लोग उलझ भी जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें, तो तब एक शिक्षक और एक अच्छा स्वयंसेवक वॉलंटियर्स वो अपनी सूझ शक्ति से अपने आप को कैसे बचाए और अपने आप को बचाकर दूसरों को कैसे बचाए, ये हमारी भूमिका रहती है। कोविड-19 की परिस्थिति में हम लोग काम करते थे तो उसमें कई चीजें भी आई ऐसी, कई बच्चे भी बोल रहे थे कि सर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हमने पहले ही बोला कि भाई पहले अपने आप को बचाओ और उसके साथ समाज को अब कैसे मदद कर पाते हो ऐसा सोचो। और पॉजिटिव सकारात्मक शक्ति, कई वाली भी ऐसे हमें संपर्क में आ रहे थे कि भी हमारे बच्चों को कुछ हो जाएगा तो क्या करोगे, हम आप लोग जिम्मेदार है। हम लोगों ने बोला कि भाई अब ऐसा कुछ नहीं होगा, बच्चे खुद सुरक्षित रहेंगे और दूसरों को सुरक्षित रखेंगे। यही तो हमारी भूमिका है। हमारे जो शिक्षक है, जो प्रोग्राम ऑफिसर है, वो मूलतः शिक्षा के साथ जुड़े हैं, तो उन लोगों ने भी अपने बच्चों को ट्रेन किया, उनका हौसला बढ़ाया और हौसला बढ़ाकर ऐसी परिस्थिति में कैसे काम कर सकते हैं, ये बात उनके साथ उनके बच्चों ने भी की है। तो ये कोविड-19 की जो स्थिति है कि समाज में कितना बदलाव आया है, एक ऐसा समाज जो सालों से हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, ये समाज आज एक दूसरे के बीच में एक फिजिकल अंतर, शारीरिक अंतर बना के रहना पड़ता है। तो ये एक नई व्यवस्था है, तो नई व्यवस्था में हमें अपने आप को ढालना है, अपने आप के साथ समाज के, जैसे कमलकर सर जी ने बताया कि अपने घर के पास के 10 घर को हम अगर इसकी जानकारी देते हैं तो ही हमारी राष्ट्रीय जो सेवा है यानी कि राष्ट्र निर्माण के कार्य में एक वॉलंटियर्स एंड प्रोग्राम ऑफिसर की जो भूमिका है। तो ऐसे छोटे छोटे बिंदु है, पहलू है, ये पहलू को अपनाकर अपने जीवन में आगे बढ़ना है। एक स्वयंसेवक कॉलेज दरमियान पढ़ के निकल जाता है, सेवा करता है, काम करके निकल जाता है, ऐसा नहीं है। उसके बाद भी उसके जीवन में जो बदलाव आता है, यानी कि ये राष्ट्रीय सेवा योजना है, व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया में है और कुल मिलाकर नागरिक निर्माण की जो प्रक्रिया है वो राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये भूमिका अपने वॉलंटियर्स और टीचर्स निभा रहे थे। कभी कभी ऐसी चैलेंज भी टीचर्स को भी आती है कि भी एक तरफ अपना क्लास टीचिंग करे और ये करे, ऐसी चीजें भी कई हमारे सामने आती है। पर मित्रों, मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि हमारी भूमिका इस स्थिति में क्लियर ये रखनी चाहिए कि हमें एनएसएस के साथ जुड़े हैं तो उसके लिए भी वक्त निकालना चाहिए। 24 घंटे ही होते हैं, 24 घंटे में से 25 कभी नहीं होते। हमारा दायित्व है, ये दायित्व यानी कि जवाबदेहिता है, वो हमारी महत्वपूर्ण रहती है। इसके साथ पे नहीं जुड़ा है, पगार के साथ कोई कार्य नहीं जुड़ा है, राष्ट्र के साथ आपका संबंध है, राष्ट्र के साथ अगर नहीं रहता है तो हमारा जो काम है वो काम जितना असरकारक होना चाहिए वो नहीं। मैं हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना VNSGU के जो प्रोग्राम ऑफिसर है और जो स्वयंसेवकों ने, जिन लोगों ने ये कोविड-19 की स्थिति में बहुत अच्छा काम किया, इसके लिए हमारे महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी ने आप सबको अभिनंदन और बधाई दी है। तो मैं उनकी ओर से
आप सबको अभिनंदन और बधाई दे रहा हूं। हमारी यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छी कामगिरी इस कोविड-19 की स्थिति में की है। कई लोगों को फूड वितरण भी किया है, कच्ची खाद्य सामग्री भी की है, जो सब्जियां है खेत में से सीधा सब्जी घर घर जाके पहुंचाया है, सैनिटाइज की व्यवस्था की है। इतनी ऐसी परिस्थिति थी सूरत वगैरह में, तो उस परिस्थिति में हमारे वॉलंटियर्स अलग अलग जगह पे जाके पुलिस की सहाय में भी खड़े रहे हैं। तो कई तरह की ड्यूटी भूमिका भी की है। तो ऐसी परिस्थिति में ही हमारी सच्ची असल ओळख जो है वो होती है। ये ओळख, ये पहचान हमारे वॉलंटियर्स और हमारे पीओ ने बनाई है। तो आप सबको मैं फिर से हमारे महामहिम ने कल ही जो पत्र भेजा है उसमें हमारी यूनिवर्सिटी के सभी बच्चों को, जिन लोगों ने कोविड-19 की परिस्थिति में इतना अच्छा कार्य किया है, इन सबको बधाई दी है। उसके साथ उनको जो प्रोत्साहन जिनके पास, जिन शिक्षकों के पास, प्रोग्राम ऑफिसर के पास मिला है, वो सभी शिक्षकों को उन्होंने अभिनंदन और बधाई दी है। मैं उनकी ओर से आप सबको अभिनंदन और बधाई देता हूं। धन्यवाद। થેન્ક યુ સો મચ ભરત સર. કાર્યક્રમના અંત તરફ આવતા આભાર વિધિ માટે હું આપણી કોલેજના એટલે કે શાહ એનએચ કોમર્સ કોલેજના એનએસએસ પ્રોગ્રામ ઓફિસર ચિરાગ સરને આમંત્રિત કરું છું. Namaskar. Good afternoon to all the dignitaries and participants. It is my pride and privilege that I got a chance for performing the vote of thanks. First of all, I like to thank our principal Dr. Girish Kumar Rana for arranging such a wonderful and innovative national webinar. Then after, I would like to share thanks to Dr. Kamal Kumar sir and Bharat Singh Thakur for delivering a wonderful knowledge to the participant and give precious time for the webinar from their routine schedule. Then after, I would like to say thanks to all the participants for attending such webinar. After that, I would like to thanks to all the program officer, teaching and non-teaching staff for cooperation in this webinar. Last but not least, I would like to say thanks to all of you, to all the participants. Now, I request all the participants to join for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you. આપ સૌને એક ફીડબેક લિંક મોકલવામાં આવશે, જે ભર્યા બાદ આપ સૌને વેબિનારનું સર્ટિફિકેટ એનાયત કરવામાં આવશે. તો સૌને ફીડબેક ફોર્મ ભરવા વિનંતી.
એક નોટિસ છે, આવતીકાલે 12 વાગ્યા સુધીમાં તમને ફીડબેક લિંક તમારા ઈમેલ આઈડી પર સેન્ડ કરવામાં આવશે, તો બધાએ ચેક કરવા વિનંતી. એવું નહીં, આપણે ઓનલાઈન કરાવવાના. Okay, thank you all. સાચે સાગર ને મોડે મોડે